Okay. Sir, can you please enable screen sharing for me? Yeah, Yeah. yeah, done. Okay. So this we are talking about the factors, right? So talking about the factors is, first of all, we will look at those factors which will vary with the environment, like factors which will vary with the environment. Okay, factors which will vary with the environment. What are the factors which will vary with the environment? So the first factor is obviously the pH of the solution, or the pH of the electrolyte which is surrounding. See, this using the word electrolyte is not a correct one. Let's say pH of the surroundings. Second is the oxygen concentration, right? Now the question arises कि सर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो सकता है? अरे सिंपल सी बात है भाई. You know, most of the pipelines most of the pipelines which travel from one state to another state, I am giving you a real life example. Okay, जैसे पता है तुम्हें छत्तीसगढ़ जो होता है ना, तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली तुम्हारा क्लेई सॉइल होता है, ठीक है. और अगर तुम आंध्र प्रदेश बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, और अगर तुम महाराष्ट्र की बात करो ना, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में बेसिकली कई कई रीजन्स में ब्लैक सॉइल होता है. सो दिस पाइपलाइन विच इज ट्रेवलिंग इंटर स्टेट, जो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र जो पाइपलाइन जा रहा है, तो ऐसा पाया गया है कि एट द इंटरफेस, द मोमेंट जहां पे ये पाइपलाइन क्लेई एनवायरमेंट से ब्लैक सॉइल एनवायरमेंट में एंटर करता है, सो दिस ब्लैक सॉइल रीजन इट एक्सपीरियंसेस ग्रेटर कोरोजन. ठीक है, स्पेशली इस इंटरफेस पे, ये जो पाइपलाइन का जो इंटरफेस है ना, दिस ब्लैक सॉइल रीजन इट एक्सपीरियंसेस अ ग्रेटर कोरोजन as compared to the portion of the pipeline which is lying in Chhattisgarh having the clayey soil. What's the reason? The reason is obviously mineralogical composition तो है ही है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिफरेंशियल ऑक्सीजन. ठीक है, एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है इसमें डिफरेंशियल ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, अपार्ट फ्रॉम मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, आई होप याद रहे. और दूसरी बात, तो पीएच की भी बात करें तो पीएच भी डिफरेंट रहता है, ठीक है ना. सो जस्ट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, फैक्टर्स विच वेरी विद द एनवायरमेंट, ऐसा होता है. ठीक है. Okay, second factor can be, sorry, the third factor can be the rate of flow of solution in contact with the metal. Rate of flow of solution, rate of flow of solution in contact with the metal. See, अगर मेरी वॉइस कहीं पर भी ब्रेक होती है, और like if you cannot hear me, please tell me, I will repeat my statements. Okay, so rate of flow of solution in contact with metal. Simple example is, if you see a pipe, right, this pipe and this pipe, if there is no obstruction to this flow of water, the rate of corrosion here will be relatively less compared to the case when there is an obstruction to the flow of water. मतलब यहाँ पे बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे ये एडीज बनेंगे. सो this rate of flow of solution in contact with the metal, it also determines the extent to which or the extent up to which the corrosion will occur or not. So this will be greater and this will be slower. आ रही है सबको बात समझ में? ठीक है. What's the fourth factor? The fourth factor is
ability of the environment to form a protective deposit on the material. इसका क्या मतलब हुआ भाई? Ability of the environment to flow a ability of the environment to form a protective deposit. To form a protective deposit. Acha, how many of you guys have seen boilers? बॉयलर्स देखा है कभी? स्टीम बॉयलर एनटीपीसी में कोई काम करता है क्या? तो एनटीपीसी या एनपीसीआईएल में अगर कोई काम करता है तो उससे पूछना कि कभी कभी जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं ना, तो हम एक्चुअली में चाहते हैं कि उस स्टीम बॉयलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टीम on top of the steel pipeline, some protective coating do form. Some protective coating do form, right? Protective coating of oxide. मतलब हम जेन्युइनली चाहते हैं कि वो जब उस हॉट एनवायरनमेंट में, हॉट प्रेशराइज्ड कंडीशन में जब स्टीम पास हो, तो उस स्टील के सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की कोटिंग बन जाए. एंड व्हाई डू वी वांट इट? We want it because, and this process is actually called hot conditioning. So some of the guys who are working in NTPC or NPCIL, they might be knowing it very well, right? So this, because in that particular environment a protective deposit has formed, and this particular protective oxide, it will prevent further corrosive reactions to take place, and it will hence prevent the degradation of the underlying base metal. Okay. And what can be the fifth factor? The fifth factor can be the most important, temperature, right? अब इसको मैं तुमको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं. अच्छा, this is my open question to all. How many of you know that zinc coating on iron can only protect it up to a temperature of 100 degrees Celsius? Zinc coating अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ता है तो एक्चुअली में आयरन के ऊपर जिंक कोटिंग ये घातक है. दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल, राइट? Zinc coating on iron can protect it only up to a temperature of 100 degrees Celsius. If the temperature increases above 100 degrees Celsius, you know, the zinc oxide film and this iron oxide film, ये दोनों अगर मैं कंपटीशन करूं ना, तो this zinc oxide film will actually like it will sorry यहाँ पे लिख दिया मैंने, this zinc oxide film, it will, अरे यार, so this zinc oxide film will actually start acting as a cathode in case of temperature greater than 100 degrees Celsius. So galvanization acts as a protective corrosive medium only up to a temperature of 100 degrees Celsius. ठीक है? अगर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया तो जिंक ऑक्साइड कैथोड. और see, why I am telling all you this is because in the later classes when we will learn the concepts there is a concept in corrosion called the mixed potential theory. तो जब आप मिक्स्ड पोटेंशियल थ्योरी की बात करोगे ना, तो मिक्स्ड पोटेंशियल थ्योरी में क्या हो रहा है? मिक्स्ड पोटेंशियल थ्योरी सेज दैट like just by looking at the standard reduction series, you cannot tell that which will act as an anode and which will act as a cathode. ठीक है? तो in that mixed potential theory, basically a graph is drawn between over potential and
log of I. Now this is the current density and this is the over potential. Over potential बोले तो applied potential minus equilibrium potential. So this graph which is drawn in mixed potential theory basically determines which is gonna be your anode and which is gonna be your cathode. Again, this is a very rough sketch. I mean, you have various terms such as anodic polarization or cathodic polarization. So, right, and cathodic polarization. So, according to that, that graph between this that that graph, which is also called the Evans diagram. So, that graph between not over, okay, let's say eta, let's call it eta. So over potential and log of current density is drawn. ठीक है, तो ये चीजें याद है, जब जब जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे याद रख लो, बाकी गेट के हिसाब से सिर्फ फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना. Okay, so talking about the formulas, I will come to the formulas, but first of all, let's learn this concept of electric double layer. Okay, let's learn this concept of electrical double layer. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों है इतना इंपॉर्टेंट? क्योंकि देखो क्या होता है. सपोज हियर आई हैव अ बेस मेटल, राइट, आई हैव अ बेस मेटल and okay, how to define it? Whenever a metal is in contact with a electrolyte, right, or a corrosive solution, हमेशा ये चीज याद रखना, there are basically two layers which forms. Okay, one is called the inner Helmholtz plane. Okay, one is called the inner Helmholtz plane and the another one is called the outer Helmholtz plane. One is called the inner Helmholtz plane and the outer is called the other is called the outer Helmholtz plane, right? So this area, it is also known as the compact layer. This area is also known as the compact layer, and this area, the region outside the outer Helmholtz plane, is called the diffuse layer. Okay, now what is happening in this contact layer and what is happening in this diffuse layer, that we will see. But first of all, we have to, like, know something. What we have to know? Key. How to define an electric double layer? An electric double layer is the name given to any region between the two different planes when charge is separated across the interface between them. तो ये जो आपका इंटरफेस है, ये बेसिकली दोनों में कुछ पर्टिकुलर चार्जेस हैं. ठीक है, क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं? लेट अस से दैट आई से दैट ओके, मेटल में यहाँ पे मेरे पूरे पॉजिटिव चार्जेस हैं. ठीक है, बाय बिकॉज आई हैव द मेटालिक आयंस हियर. लेट्स से यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोलाइट में अगर वाटर है, तो मेरे वाटर के सारे जो नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइल आयंस है वो यहाँ पे जमा हो गए. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, सिंपल आंसर. तो अभी अगर ये जमा हो गए हैं तो क्या होंगे कि ये बेसिकली वाटर के H प्लस आयंस को इस आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेयर के अलोंग अट्रैक्ट करेंगे, राइट? सो what is the basic definition of this electrical double layer? It is saying that it is the name given to any region between these two different phases when charge is separated across the interface between them. एक इंटरफेस ये हो गया, एक इंटरफेस ये हो गया, दोनों में चार्ज का सेपरेशन है, तो इसी रीजन को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का.
ठीक है, समझ में आ गया? ओके। अब इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना? इंपॉर्टेंट पढ़ना इसलिए है बिकॉज लेट्स से I am taking an example of an aqueous corrosion. So in aqueous corrosion, this electrical double layer is the region between a corroding metal and the bulk of the aqueous environment. Aqueous environment मतलब क्या? Free solution, obviously, right? So in this double layer, the water molecules of the solution, they will align themselves. ठीक है? The water molecules of the solution, they will basically align themselves, right? The water molecules of the solution, they will basically align themselves with the electric field generated by applying a potential to the metal. और इस पूरे मॉडल को हम लोग कहते हैं हेमहोल्ट्ज मॉडल। ठीक है, इस पूरे मॉडल को हम लोग कहते हैं हेमहोल्ट्ज मॉडल। देखो क्या होता है ना, अगर मैं कॉम्पैक्ट लेयर की बात करूं तो ये कॉम्पैक्ट लेयर बेसिकली एक परफेक्टली अलाइंड, मतलब ये बिल्कुल वन पार्ट, बिल्कुल वन मॉलिक्यूल थिक होता है ये कॉम्पैक्ट लेयर, परफेक्टली वन मॉलिक्यूल थिक लेयर है। तो हियर ऑल दीज आयंस दे आर मींस दे फॉर्म अ लेयर ऑफ अलाइंड मेटल। ठीक है, एकदम थिक अलाइंड मेटल है। और जस्ट उसके नेक्स्ट जो है आपका जो डिफ्यूज लेयर है, इट इज अ लेयर वेयर द आयंस आर रोमिंग फ्रीली, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, व्हाट इज हैपनिंग, the chemical nature of this corrosive media, it is basically driven by a change in the Gibbs free energy. Why Gibbs free energy? Is because ये जो हम जनरल सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ये इसका ओरिजिन कहां से आया? ये जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो ओरिजिन है, ये कहां से आया? ये ओरिजिन इसलिए आया क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एक पोटेंशियल रीजन क्रिएट कर रहा है जिसके अक्रॉस चार्जेस ट्रांसफर हो सके। भाई चार्जेस का तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ इलेक्ट्रॉन का मन किया कि अरे नहीं यार आज तो मैं ना ग्रेन बाउंड्री के अक्रॉस चले जाता हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। एक एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे पर्टिकुलर रीजन में ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रॉन या कोई भी आयन। ठीक है, तो this formation of this Helmholtz plane is the is the major is the basic cause through which this driving force originates, and due to the presence of this driving force basically all the corrosive reactions they take place, right? So what is this n? This n is nothing but it is the stoichiometric number of electrons present in the reaction। f का तो वैल्यू मालूम है, Faraday's constant है 96500, और E का भी वैल्यू मालूम है, it is the voltage which is driving this reaction, it is the voltage which is driving this reaction। Okay, so okay, why the minus sign? कई बार इंटरव्यूज में ये भी पूछा जाता है, भाई डेल्टा जी में माइनस साइन क्यों आ रहा है? अरे भाई डेल्टा जी में माइनस साइन इसलिए आ रहा है बिकॉज रिएक्शन इज, मतलब बेसिकली रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना यार। तो डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट, डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट रिएक्शन मूव कर रहा है। तो तुम्हें पता है कोई भी रिएक्शन को अगर मूव करना है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और जो तुम्हारा डेल्टा ई है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस, व्हाट इज डेल्टा ई बाय द वे? delta E is nothing but it is what it is, potential difference, right? Potential difference. So if these two conditions they will so they're like we are satisfying these two conditions, then we can say that okay, a corrosive reaction can take place, a corrosive reaction can take place, right? Okay, come on, switching on to the next case, how can we predict the corrosion rate? तो अगर आपको कोरोजन रेट को प्रेडिक्ट करना है तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा जो फैराडे के लॉ से डिराइव किया गया है एक बहुत ही यहाँ लिख देता हूँ। सो प्रेडिक्टिंग द कोरोजन रेट, सो कोरोजन रेट को अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम फैराडेज लॉ।
तो देखो मैं जा नहीं रहा हूँ डेप्थ में, मैं जा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग द एक्सप्रेशन। आप अपने हिसाब से चाहो तो एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हो, नो इश्यूज। एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, एक ही हम यूज होगा। Z. What is this T? This T is basically the thickness of the metal which is being consumed. Thickness of metal consumed. What is I? I is basically the current density. ठीक है? I is the current density. What is M? M is the molar mass. Molar mass किसका molar mass? M is the molar mass of the metal. M is the molar mass of the metal. E हम सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। रो हम सबको पता है डेंसिटी ऑफ द मेटल है, डेंसिटी ऑफ द मेटल है। N क्या है? अवोगाद्रो नंबर है। Avogadro number E is the electronic charge. And what is the value of this Z? This Z is nothing but it is अभी अभी हमने देखा था ना यार, Z क्या है? Z is the stoichiometric number of electrons. Okay, so Z is the stoichiometric number of electrons. ठीक है, इतना इतना सबको क्लियर है? हाँ, good. Okay, so now okay, but since the time is nearing, so what can we do now? You know, there are like many forms of corrosion, है ना? तो उन्हीं में से एक फॉर्म होता है which is called the stress corrosion cracking. See, whatever I am telling you now is only with context to the interview. मतलब इंटरव्यू में कई बार आपको पूछे जाते हैं द मैकेनिज्म्स ऑफ स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। तो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग की अगर आप मैकेनिज्म्स की बात करोगे तो देखो क्या होता है ना, अभी स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग तो तुम सबसे पहले जानो कि भाई होते कितने प्रकार के। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग या तो इंटरग्रैन्युलर हो सकता है, राइट? The stress corrosion cracking can be intergranular or the stress corrosion cracking can be transgranular. तो अगर आप इसके मैकेनिज्म्स की बात करोगे तो what happens is, see, एक मेटल और एक एनवायरमेंट, मतलब सबसे पहले तो जानो कि स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग क्या है। स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग और फटीग ये एक फटीग की वजह से भी जो कोरोजन होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग is defined as the growth of cracks under the combined influence of a non-cyclic tensile stress and a reactive environment. तो ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है? नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक टेंसाइल स्ट्रेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर टेंसाइल स्ट्रेस नहीं रहेगा तो क्रैक प्रोपोगेट नहीं करेगा, ठीक है। सो नो, अगर क्रैक प्रोपोगेट नहीं करेगा तो जो कोरोसिव मीडियम है उसको एक्सेस कैसे मिलेगा कि वो बेयर मेटल तक पहुंच पाए? नॉन साइक्लिक टेंसाइल स्ट्रेस एंड अ रिएक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है। नॉन साइक्लिक टेंसाइल स्ट्रेस एंड अ रिएक्टिव एनवायरनमेंट। तो जो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग है वो ये बेसिकली जो दोनों चीजें हैं, इन मतलब ऐसा तो तीन चीजें भी होती हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे टेम्परेचर भी इम्पोर्टेंट होता है। Actually, it is included in reactive environment, but how the basically how temperature influences this stress corrosion cracking, it is also a point of concern. Okay, so ये तीन चीजें हैं कि presence of corrosive media, non-cyclic tensile stress, as well as the presence of a
इलेक्ट्रोलाइट विच अगेन वो रिएक्टिव एनवायरनमेंट में ही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स पे आपका स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग डिपेंड करता है। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू द मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म क्या है स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का? you know first of all we have to see that there can be many factors which contribute to the growth of the stress corrosion cracks. What can be the factors? The factor can be anodic dissolution. It can be one of the factors. Another, let's say, factor can be film growth. ठीक है, right? And another factor can be, let's say, hydrogen. हाइड्रोजन मतलब जो आपका हाइड्रोजन एटम्स है, दे बेसिकली दे कैन एंटर इनटू दोस क्रैक्स एंड हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट भी बोल दूं तो दे कैन एंटर इनटू दोस क्रैक्स एंड दे कैन मतलब क्या होता है ना, देखो एक मैकेनिज्म ये है कि आपका मान लो क्रैकिंग हुई, आपका टेंसाइल स्ट्रेस भी है, आपका जो कोरोसिव मीडिया है उसमें से एनोडिक रिएक्शन की वजह से H+ आयन प्रोड्यूस हुए। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ना, ये बेसिकली जो टिप ऑफ द क्रैक वाला रीजन है, यहाँ पे एटॉमिक बॉन्डिंग को वीक कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बेसिकली डिक्रीजेस द कोहेसिवनेस in the cohesiveness between the atoms of the base metal, or let us say it weakens this atomic bonding and thus the yield stress decreases। और अगर एक बार yield stress decrease हो गया तो क्या होता है, मतलब वीकनिंग होगी ना, तो एक बार ये डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाता है, the propagation becomes easier, right? The propagation becomes easier। तो ये फिर मतलब ये फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके टूटता जाता है, क्रैक gets wider and wider and finally the metallic material fails। तो ये जस्ट एक वन मैकेनिज्म है। हाइड्रोजन इम्ब्रिटलमेंट के ऐसे 4 मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अनदर मैकेनिज्म कैन बी लाइक एज आई सेड दैट सपोज एक डिसलोकेशन है, वो आपका सरफेस पे आके रुका, ठीक है, अब ये डिसलोकेशन है वो सरफेस पे आके रुका है। अब अगर डिसलोकेशन सरफेस पे आके रुका है तो क्या हुआ, ये दोनों रीजन्स आपके लोकलाइज्ड रीजन्स बन गए एक्सेलरेटेड अटैक के, ठीक है। यहाँ पे आपका लेट्स से ये था, आपने स्ट्रेस लगाया, यहाँ पे टूटा, ठीक है। तो जो पैसिवेटिंग मेटल ऑक्साइड बनता है, जो पैसिवेटिंग मेटल ऑक्साइड बनता है वो ब्रिटल होता है। It is basically brittle by nature। Since it is brittle by nature and we are applying stress, it is very easy to break this brittle metal oxide layer, right? तो एक बार ये brittle metal oxide layer टूट गया तो ये क्या करता है, ये फर्दर एंड फर्दर जो आपके मतलब आप ऐसे स्ट्रेस लगाते रहते हो ना, तो ऐसे फर्दर एंड फर्दर क्योंकि डिसलोकेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और डिसलोकेशंस जो फ्री सरफेस में आके जो रुक मतलब दोस डिसलोकेशंस व्हिच आर एंडिंग एट द फ्री सरफेस, they are basically creating a step, and along these steps under the influence of tensile stress we are experiencing more and more degradation, right? So this is basically called the step dissolution model। This is called what? The step dissolution model। तो ये भी एक मैकेनिज्म है आपके स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। ओके गुड। Jit, the session is going to end in the next 4-5 minutes, so हाँ थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको, ओके? ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके। सो क्या होता है कई बार, अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि बेसिकली रिसर्चर्स ने ये स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग को पता कर मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है ना, कोई भी मॉडल एकदम से डेवलप नहीं होता है ना। तो 2 रिसर्चर्स थे, वन इज कॉल्ड हैन एंड अनदर इज कॉल्ड पू, ओके।
तो हैन और पू ने ये पाया कि they were basically working with a austenitic stainless steel. ठीक है, तो they were basically working with a austenitic stainless steel. So they found that there is a discontinuous crack growth on 100 surface 0.55 मीटर में एक डिसकंटिन्यूस इनको क्रैक ग्रोथ दिखा। 0.5 माइक्रोमीटर पे एक डिसकंटिन्यूस क्रैक ग्रोथ दिखा। ये इनका फ्री सरफेस है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, सो like they showed by marking these fracture surfaces along with the load pulses. एक बार लोड दिया, दूसरे बार नहीं दिया, फिर दिया, फिर नहीं दिया। So along with the load pulses, these cracks were actually growing. अभी हमने slip dissolution model डिस्कस किया ना, तो when these cracks were growing, so what they found is that hydrogen diffusion was basically suggested to be the rate controlling process. एक उसका रीजनिंग दिया गया कि भाई जो हाइड्रोजन डिफ्यूजन है वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि विद इन दोस लेयर्स, मतलब ये अगर आप ये क्रैक लेयर्स की बात करोगे तो इन क्रैक लेयर्स के बीच में, सिंस इट वाज अ स्टेनलेस स्टील, chromium hydroxide was precipitating within these cracked layers. ये जो क्रैक्स बन रहे थे ना, इनमें क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो रहा था। तो सिंस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन हो रहा था, तो क्या पाया गया कि दिस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इट वाज अलाउइंग द एंट्री ऑफ कोरोसिव मीडिया। क्यों भाई? सिंपल सी बात है, जो आपका कोरोसिव, जो आपका क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है वो तो आपका पोरस है ना। तो अगर पोरस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है, देखो अगर Cr2O3 बन रहा होता तो ये तो कॉम्पैक्ट है, तो Cr2O3 तो प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन अगर क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो ये तो पोरस है ना, तो इट वाज अलाउइंग द एंट्री ऑफ दिस कोरोसिव मीडिया। और जैसे जैसे लोड पल्सेस बढ़ाए जा रहे थे, ये क्रैक्स फर्दर प्रोपोगेट होते जा रहे थे विद इन इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर। तो ये इसी लाइन पे, ठीक है, इसी लाइन पे एक एक मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप किया गया स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का। ओके, सो अनदर एग्जांपल कुड बी लाइक, ये लास्ट एग्जांपल है which we call it as the film induced cleavage. What is this film induced cleavage? Talking about film induced cleavage, see क्या हुआ था कि अभी फिल्म इंड्यूस्ड क्लीवेज है, ये एक ट्रांस ग्रैन्युलर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है, ट्रांस ग्रैन्युलर स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का ये एक मैकेनिज्म है। तो इसमें ये पाया गया कि भाई मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं मैं, कि एक सिंपल वर्ड्स में समझता है। तो सिंपल वर्ड्स में समझने को इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कुछ फिल्म्स ऐसे हैं, राइट, दोस फिल्म्स they form on this surface of the metal, these films they form on the surface of the metal and in like ये जो फिल्म्स बन रहे हैं इनके कुछ कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जो बेसिकली क्रैक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, जो बेसिकली क्रैक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। अब ये फिल्म्स कुछ भी हो सकता है। These films they can be chlorides, they can be oxides, they can be nitrides, they can be porous metallic layer, anything, right? तो या तो इन फिल्म्स में, या तो ये जो फिल्म्स बन रहे हैं इनका बेस मेटल के साथ जो लैटिस पैरामीटर था वो मैच नहीं हो रहा था। तो one could be the reason of the formation of these films is lattice parameter mismatch. Another could be elastic modulus mismatch. Okay, elastic modulus mismatch. क्योंकि भाई देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका क्रैक बनना चाहिए, मेरे पास टेंसाइल स्ट्रेस ऑलरेडी है,
अगर क्रैक बनेगा तो वो तो प्रोपोगेट करेगा ही, यही तो है ना, यही तो हमने एससीसी में देखा था। और कोरोसिव मीडियम है, अगर क्रैक ग्रो करेगा तो आपके कोरोसिव स्पीसीज उस क्रैक में घुसते जाएंगे। तो क्रैक क्यों बन रहा था? Reason could be lattice parameter mismatch. Reason could be elastic modulus mismatch. Huh? What can be the other reasons? The other reasons could be interfacial state of coherency. भाई आपका जो वो मीडियम है, आपका जो इंटरफेस है वो सेमी कोहेरेंट है, ये भी एक रीजन हो सकता है ना? और तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन कुड बी ओके, anyways you can make it as 4 and you can make it as 3. तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा यूजिंग हो सकता है ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द फिल्म सराउंडिंग द क्रैक। ज्योमेट्रिक शेप भी तो हो सकता है ना। अब मान लो आपका एक फिल्म ऐसे बन रहा है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे ज्यादा प्रोपेंसिटी है ना क्रैक को ग्रो करने की। एक सिंपल लेयर बन रहा है, वहां पे ऐसा स्टेप नहीं आएगा। तो दिस फोर्थ रीजन कुड बी द ज्योमेट्रिक शेप टू, राइट? geometric shape of the film which is forming, है ना? What can be the another factor? The another factor can be intrinsic brittleness of the film. जैसा मैंने बोला ना, जो ऑक्साइड लेयर बन गया, अरे भाई ऑक्साइड लेयर तो ब्रिटल है, तो ब्रिटल है तो टूट जाएगा। अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाओगे ब्रिटल लेयर टूट जाएगा। सो intrinsic brittleness of this film. So these are all the factors which can lead to the new, like which will, in the presence of tensile stress and corrosive media, it will enhance the formation and propagation of the cracks, and thus our material can fail. Okay, जी so I guess we don't have much time left, so I'm ending this meeting. I hope I could deliver some यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोजन जो आपको जनरली किताबों में नहीं मिलेगा, बट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए पूरे प्रोसेस को। सो या थैंक यू, दैट वाज लाइक दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच संजीत फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड गाइस, अगर आपको नोट्स बनाने हैं इस वीडियो पे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इसको। इट विल बी अपलोडेड बाय टुमारो। ओके 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 सर। या हाँ या प्लीज अभिनंदन से। भैया आप जो बोल रहे थे जिंक, अगर टेम्परेचर 100 से ज्यादा चल जाता है तो वो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म नहीं करता। अभिनंदन, गैल्वेनाइज, काम करो तुम, यस। व्हाट्सएप जो सपोर्ट चैट नंबर है फाइंड माय टेस्ट का, उस पे तुम्हारा क्वेश्चन डाल दो, फिर हाँ ओके फॉरवर्ड कर देंगे एंड देन यू विल गेट द रिप्लाई बाय इवनिंग। ओके, एक्चुअली टाइम नहीं रहा है, सिर्फ 30 सेकंड रहे हैं, सो संजीत इज नॉट एबल टू गिव यू द आंसर। हाँ, वो बेटर ऑप्शन है। अभिनंदन, जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप सपोर्ट चैट। फाइंड माय टेस्ट के वेबसाइट पे दिया हुआ है नंबर, वहां पे डाल दो, देन यू विल गेट द आंसर शॉर्टली। थैंक यू। ओके।